جو آدمی عاصم کا سر لے کے آئے گا میں عاصم کے دماغ کو نکال کر کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب ڈال کر شراب پیوں گی، پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ حضرت عاصم سبقید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ ادھر جس وقت زخمی زخم سے دعا کرنے لگے، مالک میں نے تیرے دین کی حفاظت کی، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، میری لاش کی تو حفاظت کرنا۔ اے مالک جب سے میں نے کلمہ پڑھا کسی مشرک کو میں نے ہاتھ نہیں لگنے دیا، اے مالک کسی مشرک کا ہاتھ مجھے نہ لگنے دینا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر تلواریں لے کر حضرت عاصم کے قریب جانے لگے، سر کاٹیں گے اور کاٹ کر مکہ کی اس عورت کو دیں گے، انعام حاصل کریں گے۔ پروردگار عالم نے اپنی فوج بھیج دی، پروردگار عالم نے اپنی فوج بھیجی، اسلحے کی بھی لوڑ نہیں، تلواروں کی لوڑ نہیں۔ وہ فوج کون سی؟ توجہ رکھنا، پروردگار عالم نے فوراً شہد کی مکھیوں کو حکم دیا، اور شہد کی مکھیوں جاؤ میری عاصم کی حفاظت کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم، شہد کی مکھیاں آئیں، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ وہ کافر سوچنے لگے یہ تو مکھیاں آ گئی، شام ہوگی، رات کا وقت آئے گا، ہم عاصم کی یہ مکھیاں چلی جائیں گی، ہم پھر سر قلم کر لیں گے، سر کاٹ لیں گے۔ جب شام کا وقت آیا پروردگار عالم نے بارش کو بھیجا، اتنی بارش آئی، اتنی تیز بارش آئی، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بہا کے لے گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں بڑا بے نیاز ہے پروردگار عالم، اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو، دولت پہ ناز نہ کیا کرو، اپنی پارٹی پہ ناز نہ کیا کرو، اپنی فوج پہ ناز نہ کیا کرو، بڑا بے نیاز ہے۔ وہ کام لینے پہ آ جائے، شہد کی مکھیوں سے لے لے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کام لینے پہ آ جائے پانی سے لے لے، وہ کام لینے پہ آ جائے مچھروں سے لے لے، وہ کام لینے پہ آ جائے ابرا کی 60,000 کی فوج ہے، اللہ چڑیوں سے مروا دے، اس کی مرضی ہے۔ کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ بڑے بڑے طاقتوروں کو کمزوروں سے مروا دیا کرتا ہے۔ 8 صحابہ، 8 قرآن کے قاری شہید ہو گئے۔ 2 صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو ان لوگوں نے گرفتار کیا، اور خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ میں لے گئے، جا کر حارث کے بیٹوں کو فروخت کر دیا، اس لیے کہ ان کے باپ کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا۔ جس وقت انہوں نے خریدا حرمت والے مہینے تھے، 4 مہینے حرمت والے، ایک رجب، ایک ذی-قعدہ اور ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے، ان مہینوں کا احترام کافر بھی کیا کرتے تھے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ حرمت والے مہینے ہیں، لہذا ان کو قید میں ڈال دو، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ جس گھر کے اندر کوٹھڑی میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا، اس گھر کی عورت کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ کوٹھڑی میں جھانک کے دیکھا کہ خبیب کے سامنے بے موسم انگور پڑے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں نے جھانک کے دیکھا ایسے
अंगूर थे। सारी जिंदगी में मेरी आंखों ने कभी भी ऐसे अंगूर नहीं देखे होंगे। बाजारों में गई वहां नहीं देखे, देहातों में गई वहां नहीं देखे, मार्केटों में गई, दुकानों पे गई, रेडियो को देखा, पर ऐसे अंगूर मेरी आंखों ने नहीं देखे जो अल्लाह ने उस कोठड़ी के अंदर खुबैब के लिए भेजे। मेरा दिल कहता है परवरदिगार आलम ने भी फरमाया होगा, ऐ मेरे खुबैब, ऐ मेरे नबी के दीवाने परवाने, तू मेरे कुरान का कारी है, तू मेरे दीन का दाई है, मेरे दीन का मुबल्लिग बन के आया। आजा दुनिया में तुझे जन्नत के फल खिलाऊं। दुनिया में अल्लाह ने जन्नत के मेवे खिला दिए, दुनिया में जन्नत के फल खिलाए। ये हुर्मत वाले महीने खत्म हुए। इन लोगों ने मक्का मुकरमा में एक तनईम नामी पहाड़ी है, उसके करीब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी देने के लिए वहां फांसी का इंतजाम किया गया। ये तकरीबन मस्जिद आयशा के करीब है। मस्जिद आयशा के करीब जिन लोगों ने उम्रा किया, हज किया, वो जानते हैं मक्का मुकरमा की हद से बाहर मस्जिद आयशा है, हरम की हद हुदूद से बाहर, जहां से लोग उम्रे का एहराम बांध कर आते हैं। बाद लोग कह दिया करते हैं ये मस्जिद आयशा से एहराम बांधना जायज नहीं। मैं कहा करता हूं जब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हम सब की अम्मा आयशा सदीका सबका तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वहां से एहराम बांधने का हुक्म दिया, जब अम्मा आयशा का उम्रा वहां से एहराम बांधने से हो सकता है तो हमारा उम्रा नहीं हो सकता। वहां पे फांसी का इंतजाम किया गया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां पे लाया गया। उस मैदान में मक्के वाले तमाम के तमाम मर्द भी, औरतें भी, छोटे भी, बड़े भी, अमीर भी, गरीब भी, बड़े बड़े चौधरी भी, बड़े बड़े रईस जमा हो गए। आज मुसलमानों को फांसी लगेगी, आज ज़ैद को फांसी पे लटकाया जाएगा, खुबैब को फांसी पे। सारा मक्का तमाशा देखने के लिए आया। अबू सुफियान कहने लगा, खुबैब अगर मेरी बात मान जाए तो तुम्हें माफी मिल सकती है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, कौन सी बात? कि एक जुमला अपनी जुबान से कह दे, हम तुझे छोड़ देंगे। फरमाने लगे, कौन सा जुमला? तवज्जो रखना। अबू सुफियान कहने लगा, खुबैब अपनी जुबान से इतना कह दे, नाऊज़ बिल्लाह हमारी जगह पे हमारे महबूबे दो आलम को फांसी दी जाए। इतना जुमला कह दे, तुम्हें माफ कर देंगे। हम कौन सा नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां फांसी पे लाने लगे हैं, वो तो कुछ 450-500 किलोमीटर के फासले पे हैं। जुबान से इतना कह दे, कुर्बान जाऊं सहाबा की मोहब्बत के, कुर्बान जाऊं सहाबा के प्यार के। फरमाने लगे, ओ मक्के के चौधरी, ओ मक्के के रईसों, ओ मक्के के सरदारों, हमारी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं, हमारा प्यार इतना कच्चा नहीं, हमारी यारियां इतनी कच्ची नहीं, हम बच जाए और इमामुल अंबिया सूली पे लटक जाए। ओ मक्के वालों, हम तो इतना भी गवारा नहीं करते, हमारी जिंदगियों में इमामुल अंबिया के पांव में भी कांटा चुभे, इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं। अबू सुफियान कहने लगे कि मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे, लेकिन जैसे सहाबा ने मुस्तफा से मोहब्बत करके दिखाई, कायनात में इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं करके दिखाई। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था।
हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले में उन्होंने फांसी का फंदा दे दिया। कहने लगे खुबैब आखिरी तमन्ना हो बता दो, कोई आखिरी आरजू हो, कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तुम बता दो। जवाब सुनो, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मक्के के चौधरियों, मक्के के सरदारों, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। दुआ किया करो, परवरदिगार आलम हमारी भी ऐसी ख्वाहिशें बना। पर अफसोस मुसलमानों की ख्वाहिशें बड़ी अजीब है। एक मर्तबा अखबार, पुरानी बात है, अखबार में आया एक बूढ़ा आदमी मरने लगा। बेटों ने पूछ लिया, अब्बा कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? कहने लगा हाँ, मर तो जाना है और मेरी ख्वाहिश ये है, जब मेरा जनाजा लेके जाओ, मेरे जनाजे के आगे आगे कंजरियों का डांस करवाना। हाँ, अखबारों में आया। अब कई मर्तबा, ये पिछले दिनों में भी एक गांव की बात साथी बता रहा था कि एक जनाजे को उठाया गया, उस जनाजे के आगे ढोल बजाया गया। औलाद भी इतनी पागल थी, उन्होंने भी अब्बा के मरने के बाद कंजरियों से राब्ता कर लिया। उन कंजरियों ने बताया हम ठीक है, बदकार सही, बगैरत सही, लेकिन इतनी बगैरती हमसे नहीं हो सकती कि जनाजे के आगे हम डांस करें। बेटों ने फिर ये जो तीसरी कौम है ना, ये मर्दों से जो औरतें बन गई, औरतों से मर्द बन गए, इनसे राब्ता किया खुसरो से। ये आए, जनाजा जा रहा था, जनाजे के आगे आगे ढोल बज रहा था और ये तालियां बजा रहे। कब्रिस्तान में ले जाया गया और मेरा तो अकीदा है, इधर उन्होंने कब्र में उतारा होगा, उधर फरिश्तों ने कहा होगा आजा तुझे हम डांस दिखाते हैं। कुर्बान जाऊं सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी तमन्ना देखो। फरमाने लगे, ओ मक्के के चौधरियों, मेरी तमन्ना ये है, मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। नमाज पढ़ने लगे। मुसलमान हो, मोमिन आदमी हो, उसे नमाज में बड़ा सुकून आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ी लज्जत आती है। कभी हमें भी लज्जत आई? कई लोग कह दिया करते, कारी साहब पता नहीं नमाज में सुकून ही नहीं आता, नमाज पढ़ते पढ़ते भूल जाता हूं, न जाने ज़हन कहां से कहां चला जाता है। हमें सुकून कहां पे आए? नमाज पढ़ने के लिए आए, हम तो कर्ज अदा करने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने थोड़े ही आते हैं। इधर नमाज पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी नमाज हो रही है, तेरा दिमाग भी, तेरी सोच भी तमाम की तमाम दुकान पे होती है। गाहक ना चला जाए, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, फला ना हो जाए, यही बैठा नमाज में भी सोच रहा है। वो एक मर्तबा नमाज एक इमाम साहब पढ़ा रहे थे, सलाम फेरा, इख्तिलाफ हुआ। किसी ने कहा 3 रखते हो गई, किसी ने कहा नहीं 4 रखते हो गई। एक कहने लगा नहीं 3 रखते हुई हैं। वो कहने लगा तुझे कैसे पता चला? कहने लगा 4 रखते हैं, हर रकत में मैं एक दुकान का हिसाब किया करता था, मेरी 4 दुकानें हैं, आज सिर्फ 3 का हिसाब हुआ, 1 का बाकी रह गया। ईमानदारी से बताओ, जब नमाज ऐसे होगी फिर नमाज में लज्जत कहां आएगी? कुर्बान जाऊं, नमाज पढ़ने वाले कभी लोग थे। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा सबका जो रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ रहे हैं, उस कमरे को आग लग गई, छत को आग लगी, सामान को आग लगी, लोग ढोड़े ढोड़े आए, आग बुझाई। हजरत अली अल मुर्तजा सजदे में पड़े रोए जा रहे हैं।
इधर सलाम फेरा, लोगों ने कहा हजरत जी यहाँ पे आग लग गई, आपको पता ही नहीं चला। फरमाने लगे ओ लोगों, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मर्तबा रान में तीर लग गया, लोग निकालने लगे, फरमाने लगे तकलीफ हो रही है, भी निकालना तो है। जवाब सुनो, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मुझे नमाज की नियत बांध लेने दो, जब नमाज की नियत बांध लूं तुम तीर को निकाल लेना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही किया गया। अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने तीर निकाला, अली अल मुर्तजा को पता ही नहीं चला। अब आप लोग कह देंगे कारी साहब वो तो बड़े लोग थे, वो तो बहुत बड़े लोग थे। मैं कहा करता हूं आज भी मिसालें मौजूद हैं। एक हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह के वली थे, उंगली जख्मी हो गई, पांव की उंगली जख्मी हुई, डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा उंगली काटनी पड़ेगी, उंगली काटनी पड़ेगी, लिहाजा उंगली काटने से पहले नशा आवर चीज देनी पड़ेगी ताकि तकलीफ ना हो। फरमाने लगे ना, नशा आवर चीज ना देना मेरे नबी ने हराम करार दी है। डॉक्टरों ने कहा फिर उंगली तो काटनी है, कैसे काटे? कहने लगा ठहर जाओ, मुझे नमाज की नियत बांधने दो, जब मैं सजदे में चला जाऊं मेरी उंगली तो काट देना। अल्लाह वाले ने नमाज की नियत बांधी, सजदे में गए, डॉक्टरों ने उंगली काटी, मरहम पट्टी कर दी और जब सलाम फेरा फरमाने लगे हाँ जी ऑपरेशन हो गया, कहने लगे हजरत जी हमने तो उंगली काट कर आपके पट्टी भी कर दी, आपको पता ही नहीं चला। जिन लोगों के पल्ले ईमान हो, हकीकत में मुसलमान हो, खुदा की कसम उनको नमाज में फिर मजा आया करता है, लज्जत आया करती है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, मजे ले लेकर नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े सुकून से, बड़ी लज्जत आ रही है। मुसलमानों ईमान वालों को लज्जत आया करती है। फिर दिल में ख्याल आ गया मक्के वाले ये ना सोच लें कि खुबैब रज़ी अल्लाह ताला मौत के डर की वजह से नमाज को लंबा कर दिया। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला सलाम फेरा, फांसी के फंदे पे ले जाया गया, गले में फंदा डाल दिया गया। खुबैब का कसूर कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, गलती कोई नहीं, जुर्म ये है इमामुल अंबिया से प्यार क्यों। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी, मालिक ये जितने भी मुझे फांसी लगाने के लिए आए, ऐ मालिक इनमें से एक को भी दुनिया में बाकी ना छोड़ना। फिर दुआ करने लगे मालिक मेरा सलाम मेरे महबूब को पहुंचा दे, मेरे महबूब को पैगाम दे दे, आज तेरे खुबैब को सूली पे लटकाया जा रहा है। मालिक यहाँ पे बंदा कोई नहीं जो मेरा पैगाम मेरे मुस्तफा तक ले जाए, मेरे महबूब को जाके इतला कर दे कि आज तेरे खुबैब को, आज कुरान के कारी को फांसी दे दी गई। अल्लाह ने हवा को भेज दिया, अल्लाह ने हवा को भेजा, खुबैब के बोसे लेने लगे और हवा कहने लगी खुबैब मैं चली, कहां चली? कहने लगी मदीने चली, कोई पैगाम हो? शायर कहता है खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे जा आखी हवाएनी जे तेरा गुजर होवे, ओ जा आखी हवाएनी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे आका तेरी नजर होवे। आका दो आलम रहमत दो आलम सबका दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में एक कुएं के करीब, सहाबा भी चारों तरफ तशरीफ फरमा, वहां पे बैठे, आपने फरमाया वालेकुम सलाम।
صحابہ بڑے حیران، آقا سلام کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، آپ نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آج میرے خبیب کو، میرے قرآن کے قاری کو مکے والوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور یہ ہوا میرے خبیب کا سلام لے کے آئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان، میرے نبی کے 10 قرآن کے قاری شہید کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دیوانوں پروانوں، کون ہے جو مکہ مکرمہ میں جا کر میرے خبیب کی خبر لائے؟ کون ہے تم میں جو مکے میں جا کر میرے خبیب کی لاش کو لے کے آئے؟ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو خبر لائے، میرے خبیب کی لاش لائے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو بھی خبر لائے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضرت زبیر سبقت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نوجوان کھڑے ہوئے، آقا ہم لائیں گے۔ یہ دونوں شیر جوان دن کو آرام کرتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں جا پہنچے۔ حضرت خبیب کو پھانسی دیے، کوئی 40 دن گزر گئے اور یوں لاش کو لٹکا رکھا ہے۔ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دیکھا، یوں لگا جیسے حضرت خبیب کو آج ہی پھانسی دی ہو، بالکل تر و تازہ۔ چاروں طرف کافر سوئے ہوئے، پیرے پہ کوئی لاش اتار کے نہ لے جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تلوار ماری، رسی کو رسی کٹی، حضرت خبیب نیچے آئے، بعد میں دیکھا تو لاش نظر ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ فرشتے جنت میں لے گئے۔